આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત અને હું છું આપની સાથે નતાશા। દર્શક મિત્રો, છેલ્લા ઘણા મહિનાઓની મહેનત આખરે રંગ લાવી રહી છે અને ભારતની ધરતી પર રાફેલનું ટચડાઉન તે ઘડીની રાહ જોવાઈ રહી હતી છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી। જો કે રક્ષા ક્ષેત્રે જ્યારે ભારતની ત્રણેય સૈન્યને બળ આપતા એવા 5 વિમાન એટલે કે રાફેલના પહેલા તબક્કાની ડિલિવરી જ્યારે ભારતને મળતી હોય તે અતિવિશેષ દિવસ માનવામાં આવતો જ હોય છે। અને જ્યારથી ફ્રાન્સમાંથી ભારત માટે રવાના થયા છે આ 5 રાફેલ વિમાનોની ટુકડી અને તેને ફ્લાય કરીને અહીંયા લઈ આવનાર પાયલટ્સનો પણ હાલ તો ખૂબ મોટો સહફાળો જોવામાં આવી રહ્યો છે। એકંદરે ફક્ત હવાઈ ક્ષેત્રે નહીં પણ ભારતની ત્રણેય સૈન્યને કાબૂમાં રાખતું અને તેની તાકાત વધારતું એવું રાફેલ વિમાન જ્યારે ભારતને પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું હોય તેની વિશેષતાઓ અને તેની બખૂબી જાણી લેવાનું અત્યંત જરૂરી છે। જો કે રાફેલ ભારતને મળ્યા છે પણ તેની બોખલાહટ ચીન સુધી છે અને પાકિસ્તાનમાં ઘણા મોટા પાયે હડકંપ મચી જવા પામ્યો છે। આ આપણે એવી એક પરિસ્થિતિની રાહ જોઈ રહ્યા હતા અથવા તો પછી એવી પરિસ્થિતિમાં આપણને રાફેલની ડિલિવરી મળી છે કે જ્યારે ભારત અને ચીનના સંબંધોમાં પણ ખટરાક છે અને પાકિસ્તાન તરફથી હરહંમેશા ભારત ઉપર જે છૂપો વાર થતો આવ્યો છે તે પછી એલઓસી ઉપર સીઝ ફાયરનું ઉલ્લંઘન મારફતે હોય કાં તો પછી આતંકવાદીઓની ઘૂસણખોરી અને હાલમાં પણ આપણે જોયું સમાચારોમાં પણ આપણને જાણવા મળે છે કે પાકિસ્તાન પોતાની નાપાક હરકતોથી બાજ નથી આવી રહ્યું। તેવી પરિસ્થિતિમાં ભારતની સૈન્ય શક્તિમાં વધારો ત્યારે બીજા પાડોશી દેશો કે જેમની સાથે આપણે તો સંબંધ સાચવવામાં હરહંમેશ પહેલ કરી છે, મૈત્રીપૂર્ણ ભાવના દાખવી છે, પણ જ્યારે દગાબાજી આપણને મળતી આવી છે ત્યારે હવે આ દગાબાજી સહન નહીં કરી લે ભારત અને ઈચ્છા તો નથી પણ ભારતને જ્યારે રાફેલની પહેલી એવી વપરાશ કરવા માટેની જો મંજૂરી મળે છે તો આખરે તે ક્યારે મળશે તે પણ એક મહત્વનો ચર્ચાનો વિષય છે। રાફેલને વેલકમ કરવા માટે અંબાલા એરબેઝ સજ્જ થયું છે અને અંબાલા એરબેઝ પર ખાસ પ્રકારના સલ્યુટ આપીને રાફેલની વેલકમની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે। હવે વોલ્ટર સલ્યુટ આપવામાં આવનાર છે। જો કે આ વોલ્ટર સલ્યુટ શું છે અને તે તમામ બાબતોની ચર્ચા જ્યારે આપણે ડિટેલમાં કરવાના હોઈએ ત્યારે આપણી સાથે આજે ચર્ચા કરવા માટે આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત થયા છે બ્રિગેડિयर डॉक्टर विजय सागर जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है। ब्रिगेडियर सर, आपका बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम के तहत। थैंक यू नताशा, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो यही बात आगे आ रही है कि राफेल के आगमन से चीन बौखलाया है और पाकिस्तान में हड़कंप है। इसके मद्देनजर रखते हुए राफेल का जो एम्प्लॉयमेंट है सबसे पहले वहां से चर्चा शुरू करेंगे कि राफेल के एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से देख रहे हैं आप। अब राफेल जब भारत को मिलने जा रहा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए राफेल कैसे एम्प्लॉय किया जाएगा, कैसे उसका इस्तेमाल होगा सर? देखो नताशा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि हमने अभी पिछले प्रोग्राम में काफी बात की थी कि राफेल का क्या क्या मारक क्षमता है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी क्या है, डिफेंसिव कैपेबिलिटी क्या है, उसमें कौन सी मिसाइल्स है, कौन सा म्यूनिशन है। पर अभी मैं आपको ये बताऊंगा, आपने बोला ना कि चीन की नींद उड़ी हुई है और पाकिस्तान हड़कंप में आया हुआ है। उसका कारण है क्योंकि ये जो हवाई जहाज है ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है, एक डिफरेंट चीज है। सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, हम इसको बार बार सब बोल रहे हैं ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये हवाई जहाज मल्टी रोल नहीं है। मैं आपको 1 मिनट आपको इस बात के बारे में समझाऊंगा। मल्टी रोल का मतलब होता है कि हवाई जहाज जो होता है वो हर एक पर्पज के लिए होता है। अभी तक जो हवाई जहाज थे, कोई एयर डिफेंस के लिए चाहिए, कोई दुश्मन में डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए चाहिए, कोई रिकॉनेसेंस के लिए चाहिए, कोई जो जमीनी फौज है, आर्मी है, उसकी क्लोज एयर सपोर्ट के लिए चाहिए, कोई नेवी की सपोर्ट में चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे रोल्स होते हैं। कोई न्यूक्लियर वाला चाहिए। तो ये जो मल्टी रोल जो होता है वो ये सारे काम कर सकता है। पर उसमें क्या होता है कि अगर वो सारे काम कर भी सकता है तो जमीन से जब वो उड़ान भरेगा तो वो उसी रोल के लिए तैयार होके भरेगा, तो उसको हम मल्टी रोल बोलते हैं। बट ये जो जहाज है ये मल्टी रोल नहीं है, ये ओमनी रोल है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैंने इसको एक डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक के लिए तैयार करके भेजा है और रास्ते में एयर डिफेंस की जरूरत पड़ जाती है तो पहले हमको एक एयर डिफेंस वाला जहाज उसके लिए अलग से उड़ाना पड़ता था। अब इसके साथ में क्या होगा कि वो एयर डिफेंस का काम भी यही करेगा। तो इसलिए ये सारे के सारे रोल किसी समय भी वो स्विच कर सकता है, किसी समय भी कर सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है जो इस वक्त चीनियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बहुत खतरे का निशान बना हुआ है। दूसरा मैं आपको जब बताता हूं कि जब भी एक हवाई जहाज हवाई हमला करना होता है तो हम एक पैकेज बनाते हैं। उसके अंदर कोई स्ट्राइक वाला होता है, कोई एयर डिफेंस वाला होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर वाला जहाज होता है, कोई टेल पे उनकी डिफेंस कर रहा होता है। तो एक बड़ा सा पैकेज बनता है। मान लो अगर हमने किसी एयरफील्ड को मारना है
तो आइडियली स्पीकिंग हम बोलते हैं कि कम से कम 24 जहाज चाहिए, पर 24 नहीं तो फिर भी स्ट्राइक पैकेज हम 12-13 का जरूर भेजते हैं। बट अब ये रफेल के आने से अगर यही कार्यवाही हमने चाइना में करनी होगी या हमने पाकिस्तान में करनी होगी तो हमको बहुत कम जहाजों की जरूरत पड़ेगी। और साथ में इसकी जो मारक क्षमता है, एक्यूरेसी है, इसका जो म्यूनिशन है, वो कोई भी ऐसा टारगेट नहीं इस वक्त नहीं होगा जो बचेगा नहीं। हालांकि बोला जाता है कि चाइना की तरफ पहाड़ियां हैं तो उनके जो बंकर्स है वो पहाड़ी के अंदर होंगे, पहाड़ी की गुफाओं में होंगे, पर इस जहाज की कैपेबिलिटी ये है कि ये गुफाओं के अंदर भी मार सकता है। तो इसलिए चाइना वाले हड़काए हुए हैं। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, मान लो अगर आपने ले पे इस जहाज को डिप्लॉय किया है तो पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स हैं जो हमारे खिलाफ आएंगी उस सेक्टर में, इसके पहले कि वो जहाज उड़े अपने एयरबेस से, ये उसको वहीं पे मार देगा। यानी कि अगर ये हमारा रफेल जहाज हवा में उड़ रहा है उस वक्त, और जैसे 150 किलोमीटर की हमारी रेंज है बियॉन्ड विजुअल रेंज मेटियोर की, और स्कार्डू सिर्फ 200 किलोमीटर है, वो उड़ के भी उसको 5 मिनट भी नहीं होंगे, 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि ये रफेल की रेंज में आ जाएगा और पाकिस्तानी टेरिटरी में ही उसको मार गिराएंगे, उसको इंडियन टेरिटरी में आने ही नहीं देंगे। तो इस वजह से मैं इसके रूल्स में थोड़ी स्पेशलिटी थी जो मैं आपको बता रहा था। जी बिल्कुल। और अब ये वो विमान है जिसके आगे आसमान भी छोटा पड़ जाएगा, और शायद इसी की विशेषता और खूबियों के ध्यान में चलते हुए हम ये सारी बातों में जुड़ रहे हैं। जैसे कहा जा रहा है कि डायनामिक टारगेटिंग में माहिर है रफेल, और जैमर्स का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। हमारे साथ पैनल पे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूँ उससे पहले आप मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप सवाल करिए, मैं वो ऐड कर दूंगा उसके अंदर। सवाल तो यही रहेगा कि रफेल के आगमन से, जैसे मैंने विजय सागर जी से भी बात करी, उनसे भी मैंने यही पूछा था कि जैसे ही हम रफेल के बारे में बात करते हैं तो चीन बौखलाया है और पाकिस्तान में हड़कंप है। अब मेरा सवाल ये है सर कि 4.5 जनरेशन का, मतलब 4.5 जनरेशन का इसको प्लेन माना जा रहा है, जिसके मद्देनज़र पे ध्यान में रखते हुए अगर हम चाइना का J20 की बात कर रहे हैं, चेंगडू की बात कर रहे हैं, तो वो 5th जनरेशन का कहा जा रहा है। कोई बड़ी खूबी है क्या जिसमें रफेल और चेंगडू की कंपैरिजन में अगर हम आगे बढ़े तो? देखो, ऐसा है कि चेंगडू जो J20 है वो बना है चेंगडू में, और वो F-22 रैप्टर की कॉपी है, वेरी पुअर कॉपी। देखिए, वो अपने को 5th जनरेशन कहते हैं। 5th जनरेशन बेसिकली 2 क्वालिटीज होती हैं विच एलिवेट्स एयरक्राफ्ट टू 5th जनरेशन। वो ये है कि एक तो उसमें स्टेल्थ क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब रेडार में उसका सिग्नेचर या बहुत छोटा हो या ना हो। F-22 क्लेम करता है कि उसमें रडार जो B2 था, B1 एंड V2 बॉम्बर्स वो क्लेम करते थे कि दे हैव द रडार स्टेल्थ कैपेबिलिटी। अब इसकी बात ये है कि इसका जो रडार जो ये J20 है, तिब्बत में फ्लाई कर रहा था, पंजाब से सुखोई 30 MKI ने उसके अपने रडार में पकड़ लिया और उसकी पिक्चर्स हैं, मतलब। और दूसरा ये क्वालिटी होती है सुपर क्रूज, सुपरसोनिक क्रूज, मतलब कि जब एक एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक स्पीड पे जाता है, यानी 760 माइल्स पर आवर से अबव जाता है, तो उसको आफ्टर बर्नर खोलना पड़ता है। मतलब मैक्सिमम थ्रॉटल के बाद आपका फिर और थ्रॉटल फ्यूल कंजम्पशन और हो जाती है, एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न होता है। वो जो है क्वालिटी इसमें जो सुपर क्रूज में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। विदाउट ओपनिंग आफ्टर बर्नर, यानी कि सेविंग योर फ्यूल, यू कंटिन्यू एट सुपरसोनिक स्पीड ऑफ मैक 1.4 एंड अबव, मतलब आप 1.5 गुना स्पीड की साउंड से और उससे भी ऊपर जा सकते हैं कंटिन्यूअसली। ये J20 में बिल्कुल कम है, बड़ी रफेल में 1.4 मैक को कंटिन्यूअसली जा सकता सुपर क्रूज, ये इसमें क्वालिटी है। तभी भी इसके बावजूद रफेल अपने आप को 4.5 कहता है और वो अपने को 5 जनरेशन कहते हैं। फिर जो मैंने बात बता रहा हूं आपको, बात की फाइटर एयरक्राफ्ट की जो 2 और मेन क्वालिटीज हर एक की होती हैं, कि एक तो उसका रेट ऑफ क्लाइंब बहुत अच्छा होना चाहिए और एक रेट ऑफ टर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। ये 2 चीजें हैं जो डॉग फाइट में और गेनिंग द हाइट में टू गेट एडवांटेज वो बहुत जरूरी होती है। ये रफेल की दोनों ज्यादा है J20 से। तो अब बाकी चीजें जो आप जो काउंट कर लीजिए, फॉर एवरी डिसिप्लिन रफेल इज मोर, इंक्लूडिंग द आर्मामेंट। आर्मामेंट की तो हमने कल से बहुत डिस्कशन कर ली है, ये सारे आर्मामेंट है। और क्वेश्चन अभी बात कर रहे थे कि इसकी जो रेडार है, जो कॉकपिट रेडार जो है,
इसकी फ्रीक्वेंसी पकड़ी जा सकती है। जैसे हमारे रफाइल अभी आ रहे हैं, अगर वो अपना रेडार ऑन करके पाकिस्तान की तरफ मूव भी करेंगे ना, तो पाकिस्तान फ्रीक्वेंसी पकड़ लेगा अगर उनका रडार ऑन होगा। तो ये जो चीज है, ये हमको एयरफोर्स में पहले ही बताया जाता था, व्हेन यू हैव योर गन साइट और रडार ऑन, डोंट पुट योर नोज टुवर्ड्स द एनिमी टेरिटरी। ये एक खास प्रिकॉशन लेते थे। तो रफाइल में जो है, इसकी एक प्रावधान है कि उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ी जाती, उसको जैम कर दी जाती है। और एनिमी भी अगर आपका वेपन लॉन्च सिस्टम को जैम कर रहा है, जैमर्स लगे होते हैं, जैमर का फायदा ये होता है, अगर मैं अटैक करने जा रहा हूं, एनिमी रडार मुझे पिकअप कर रहा है, मैं एनिमी रडार को जैम कर दूंगा। अगर वो रडार में एंटी जैमिंग क्वालिटी नहीं है तो जैम हो जाएगा। अगर वो एजिलिटी है उसकी, तो वो एक बैंड से दूसरे बैंड को जंप करेगा। पर रफाइल में जो क्वालिटी है, वो है टोटल जैम कर देगा एनिमी जैमर को, मतलब उसको जैम नहीं कर सकते। ये क्वालिटी जो रफाइल की है, ये बहुत अच्छी है। बाकी तो अब हमने आपको बताया, पर बेस्ट इज वो मिड एयर रिफ्यूलिंग का जो अब ये रिफ्यूलर साथ चल रहा है इन जहाजों के। टैक्टिकल बैटल एरिया में अगर 4 जहाज जा रहे हैं, आप एक जहाज में हो और आप एक रफाइल उड़ा रहे हैं जो बड़ी रिफ्यूलिंग का काम करता है, मतलब आप टैक्टिकल बैटल एरिया एट 300 फीट इवन एट नाइट आप अपने जहाजों को रिफ्यूल करके वापस आ जाएंगे। वो फ्यूल इसलिए करते हैं कि जो उन्होंने फ्यूल वेस्ट हुआ है टेक ऑफ से लेके बॉर्डर तक जाने में, वो रिप्लेनिश हो जाएगा। तो ये चीज भी बहुत खूबी है इसमें। ये मैं फ्लाइंग की बातें आपको बता रहा हूं, क्यों ये इसलिए ज्यादा ये, और पायलट जो फ्लाई करते हैं, उन्होंने जब इसको फ्लाई किया तो कहते हैं इट हैंडल्स सो ब्यूटीफुली, और खासकर उसको हाई ऑल्टीट्यूड में रिकवरी की। जैसे मैंने कल शायद बताया था कि जब हम अटैक करते हैं तो हमारा एयरक्राफ्ट जो होता है वो रिकवर होने के बाद ऊपर भी मूव कर दे तो मश करता है ग्राउंड पे, सी लेवल पे वो बहुत कम करता है। एट हाइट वो 1500 फीट 1000 फीट भी मश कर सकता है, एट 28,000 30,000 फीट। रफाइल में ये क्वालिटी है कि उसका डैम्पनर है, वो मश को एकदम से न्यूट्रलाइज कर देता है। ये बहुत जबरदस्त क्वालिटी है व्हेन यू आर अटैकिंग टारगेट्स इन सियाचिन, टारगेट्स इन हाई ऑल्टीट्यूड। ये बहुत चीज है। राइट, तो इसलिए ये पायलट से जब हम सेलेक्ट किया, इस क्वालिटी को देख के सेलेक्ट किया। बिल्कुल, और आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जितनी भी क्वालिटीज़ हम डिस्कस करेंगे शायद हमारा वक्त कम ही रहेगा। पर अभी जब ये वायु योद्धा की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्ट्रेटेजी की भी बात कर लेते हैं। मेरा सवाल विजय सागर जी आपसे रहेगा कि स्ट्रेटेजी की जब हम बात कर रहे हैं तो एयरबेस पर लैंडिंग करने के साथ ही विजुअल्स और ब्रॉडकास्टिंग पब्लिशिंग को मनाही की गई है। इनफैक्ट आर्टिकल 144 के तहत वहाँ पे कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। तो इससे भी शायद आपको लग रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की बौखलाहट में और ज़्यादा बढ़ावा होगा, क्योंकि अब तो उनको फुटेजेस भी नहीं मिलने वाले कि किस तरह से हमारे यहाँ पे इसका लैंडिंग हो रहा है, क्या स्वागत की तैयारियां हैं, और इसको विजुअल्स जब पब्लिश ही नहीं होने वाले, तो आई एम श्योर कि इससे जो डिप्लोमेसी है वो ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो। अभी तो हम फिलहाल यही चाहेंगे। सर नताशा, आपके बात बिल्कुल सही है, मैं आपका पूरा डिटेल में आई विल आंसर यू। उसके पहले एक जो बख्शी सर ने आपको मैन्यूवरेबिलिटी के बारे में बताया हाई ऑल्टीट्यूड की, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ आपके दर्शकों को एक थोड़ी सी चीज याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आपको स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन याद हो कि बालाकोट में क्या हुआ था, उसमें स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन थे MiG-21 में, और उन्होंने एक F-16 को मार गिराया था, और उसी प्रोसेस में उनको पता चला कि उनका जहाज भी किसी न किसी से ट्रैक हो रहा है। इसका मतलब किसी और जहाज ने उनके ऊपर निशाना लगा दिया है। तो उसके ऊपर जो पायलट्स के अपने ड्रिल्स होती हैं, उन्होंने ड्रिल करने की कोशिश की, उसको कहते हैं वर्टिकली पुल अप करके आपने उल्टा मनोवर करना है। वो एक तरीका है लॉक को तोड़ने का। पर जैसे ही उन्होंने ऊपर किया तो वो जो आपका MiG-21 पुराना जहाज था वो स्टॉल हो गया, और उसके अंदर वो मनोवरेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए विंग कमांडर अभिनंदन को शूट डाउन किया गया। अगर ये वहां पे रफेल होता तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि विंग कमांडर शूट डाउन होते अभिनंदन। और दूसरा, जितने F-16 आसपास घूम रहे थे वो सारे के सारे मलबे में जमीन पे आते, लैंड नहीं करते वापस पाकिस्तान एयरबेस पे। तो ये इसकी खासियत है। अभी आपकी बात आता हूं अंबाला में ना। अंबाला में जो ये सारा सेक्शन 144 लगा है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त कंट्री में बहुत बड़ी हाइप हो गई है। रफेल आया है तो हम लोगों ने इतना अगर मैं बोलूं शोर मचाना शुरू कर दिया है। 5 जहाज आए हैं नताशा, ऐसे जहाज हिंदुस्तान में कई बार आए हैं, ऐसे वेपन सिस्टम हिंदुस्तान में कई बार आए हैं, और जितनी हाइप दी जा रही है उसकी जरूरत नहीं थी। परंतु ये जो हाइप है
ये हमारे देशवासियों का उत्साह दिखा रहा है। इस वक्त चाइना के साथ प्रॉब्लम चल रही है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक है, तो इसलिए इसको मैं ब्लेम नहीं करूंगा। अब अगर ये 144 नहीं लगती, यहाँ उस अंबाला एयरबेस को कॉर्डन ऑफ नहीं किया जा सकता जाता, इवन जर्नलिस्ट को बाहर रखा है, तो उसका रीजन ये है कि ये इस वक्त कोविड के टाइम पे लोग सारे उमड़ते उसको देखने के लिए, जो एक शायद कोविड के सिनेरियो में अच्छी बात नहीं थी। दैट वाज वन। एंड सेकेंडली, वहां पे आपने खुद बोला था वाटर सल्यूट हो रहा है। वाटर सल्यूट का मतलब होता है, जनरली ये एयरफोर्स में यूज करते हैं जब कोई बड़ा एक्सपीरियंस पायलट रिटायर होता है, अपनी लास्ट सॉर्टी पे जाता है, तो जब वो रनवे पे आके लैंड करता है तो रनवे के दोनों तरफ हम वाटर वाले जो फायर ब्रिगेड के वाटर होसेस होते हैं ना, बड़े बड़े टैंकर्स, तो उनको खड़ा करते हैं। जैसे शादी में आप दुल्हन के लिए आप एक छाया बनाते हैं और वो बीच में से चल के आती है, तो इसी तरह से एयर रनवे के दोनों तरफ वो सारे बना दिए जाते हैं और वो लाइव आते हैं, जहाज उसके बीच में से निकलता है, तो वो एक किस्म का सैल्यूट माना जा सकता है। बाकी इंपॉर्टेंस ये है कि आज के जो हमारे एयर चीफ हैं वो खुद इस वक्त अंबाला हैं। अभी मेरे ख्याल 1352 हो गया है, another 20 minutes they'll be landing over there, and from Air Force point of view, I mean, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे में भी रोमांच आ रहा है, and रोमांच is coming after 42 years of service in the army। तो ये जो यंग बच्चा है आज, वो क्या सोच रहा होगा? तो उस चीज को, वो कोविड के सिनेरियो में वो सारे वहां इकट्ठे ना हो जाएं, उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। चलिए, बाकी जो आपने बोला कि फुटबॉल नहीं, नताशा, वो वैसे भी दुखी हो गए। छोटी सी मैं बात बता दूं, जो अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, जो अच्छी बात है, पर जो रफाल में है उसमें मिसाइल जैमर लगा हुआ है। अगर एनिमी की मिसाइल ने मेरे को लॉक ऑन कर दिया है, मैं उसको जैम करके इनफैक्ट उसको वार्ड ऑफ करा सकता हूं। तो ये है। और मेरे पास जो मेरे पास एंटी जैमिंग डिवाइसेस हैं, जो इंफ्रारेड होगी या जो भी होगी, वो मिसाइल जो फायर भी होगी तो वो ट्रैक ऑफ हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली मिग में नहीं थी, तो ये भी प्रॉब्लम है। और जो अभी वाटर कैन की बात कर रहे हैं, आरएएफ का ये ट्रेडिशन है, पर जर्मन ट्रेडिशन दूसरा है। जर्मन ट्रेडिशन में जब एक पायलट 3 विक्ट्री करके वापस आता था, तो उसको एक्टिव वाटर होस से नहीं करते थे, उसको दूसरे पानी से करते थे एंड शैंपेन उसके सिर पे डालते थे। तो वो दूसरी बात है, पर ये ट्रेडिशन एयरफोर्स के चल रहे हैं। चलो देखते हैं कौन सा ट्रेडिशन एयरफोर्स लेती है इंडियन इसमें। श्योर कि चाइना के जो J-20 के कंपैरिजन में हमने रफेल की बात की, तो उसमें बहुत सारी विशेषताएं ऐसी थी जो हमारे दर्शकों को खास तो ये बताना ज़रूरी था। और इस मौके पे जब भी हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं, तो एक सवाल ये भी हो रहा है मेरा, प्रफुल्ल बख्शी जी आपसे रहेगा सवाल, कि रशिया ने चाइना की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो डिलीवरी है वो अटका दी थी, तो इसके पीछे आप कोई बड़ी कहानी या फिर बड़े कोई लिंकअप्स देख रहे हैं क्या इस मौके पर? देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी बहुत अफवाहें फैल रही हैं और जो मीडिया में कई खबरें आ रही हैं। मैं असलियत बताऊं, S-400 के डेवलपमेंट में चाइनीज टेक्नोलॉजी का भी हाथ है। चाइनीज ने भी इसको योगदान दिया, उनको S-300 मिला था। अब बाद में इनकी डिलीवरी क्यों रुक रही है, क्या पेमेंट के कारण रुक रही है, जिसके कारण भी रुक रही है, इस समय रशिया जो कह रहा है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। रशिया क्या चाहता है क्या नहीं चाहता ये नहीं क्लियर। फिलहाल ये न्यूज जरूर है कि उनको S-400 की डिलीवरी रुक गई है, शायद इंडिया ने प्रेशर लगाया है, पर बात इससे आगे है, ये इसको बात मान के चलिए। और रशिया इस समय बड़ा केयरफुल रह रहा है, ये तो कौन सा स्टेटमेंट बनाना नहीं चाहता, पर हमारे पास S-400 आ रही है ये पक्का है। और ये एक सबसे उम्दा एंटी मिसाइल सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। मतलब आपके ऊपर मिसाइल फायर हो रही है तो ये S-400 उसको इंटरसेप्ट करता है। जैसे पेट्रियट की बात थी, ये पेट्रियट से बेटर है, ये फायदा है। पेट्रियट ने जो स्कड को डिस्ट्रॉय किया था, 37 पेट्रियट मारे गए थे तो एक स्कड गिरा था, तो ये फर्क था दोनों में। तो अब देखी जाएगी कि क्या बात होती है। बिल्कुल, विजय सागर जी कुछ एड अप करना चाह रहे हैं इसमें? नताशा, एड अप नहीं, यू आर टचिंग माय हार्ट। एयर डिफेंस इज माय ब्रेड एंड बटर। ये जो S-400, दिस इज माय ब्रेड एंड बटर इन द आर्मी, मैंने यही किया है। अभी रशिया की जो हम बात कर रहे हैं, विंग कमांडर बख्शी ने बिल्कुल सही बताया, बट इसका बेसिक कारण ये है कि देखो, चाइना को मना कर दिया, उन्होंने बोला कि कोविड की सिचुएशन है, ये तो एक बहानेबाजी है। इंडिया में कोविड की सिचुएशन नहीं है, यहाँ हमारी आ रही है, उसकी नहीं आ रही है। इसके 2-3 कारण हैं।
कि इंडिया के जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर खुद गए रशिया की परेड में करने के लिए, जी परेड अटेंड करने के लिए गए हैं, विक्ट्री परेड नहीं, वो रशिया से नेगोशिएशंस करने गए थे। उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा ऐसा है कि जब आपका बुरा समय था हमने आपको मदद करी, जब हमारा बुरा समय था आपने मदद करी। तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया के साथ वो बहुत स्ट्रांग है, और ऊपर से आज भी रशिया को डॉलर्स की कमी है, वो इंडिया दे सकता है। रूबल जो आपने बोरी में भर के जहां मर्जी रखे, इट मेक्स नो डिफरेंस। नाउ उससे भी बड़ी बात जो रशियंस ने बोली है खुद के, कि क्या हुआ है कि लेनिनग्राड में यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग में एक लेबोरेटरी है, उनके जो हेड है वो रशियन जो डिजाइन थे, सीक्रेट थे, इंटेलिजेंस सीक्रेट थे, वो डिफरेंट काइंड वो चुरा के चाइना भेज रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और चाइना नोन है, जैसे J20 की बात कर रहे हो, 5th जनरेशन फाइटर बोलना शुरू कर दिया है, वो कॉपी मारी हुई है, ओरिजिनल नहीं है उनके पास, और एंड वेरी बैड कॉपी। जो वो उसकी खूबियों की बात कर रहे हैं वो उस जहाज में है नहीं, हमने देखी नहीं कहीं पे। और नताशा एक चीज और बता दूं मैं, जहां पे इंडियन एयरफोर्स का एज आता है चाइनीज एयरफोर्स के ऊपर, चाइनीज एयरफोर्स जो है उसके किसी भी पायलट के पास 15 मिनट का भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है डॉग फाइट में। अगर एयर टू एयर कॉम्बैट में जहां पे जहाज को रोकना है 15 मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन, ये आई टेल यू दिस, नहीं लड़े वो, और जाके इंडियंस कर सकते हैं। यस, आई थिंक विंग कमांडर बख्शी कैन स्पीक ऑन दिस। यू सी, ये प्रॉब्लम ये आती है कि अभी तक तो चाइनीज ने कभी किसी कंट्री के साथ एक्सरसाइज नहीं करते। अभी जब ये एक्सरसाइज हुई थी अमेरिकन एयरफोर्स के साथ में इंडिया की, सबसे पहले आज से 8 साल पहले, तब जो अमेरिकन एयरफोर्स का कमांडिंग ऑफिसर था उसकी रैंक जाते जाते बच गई, क्योंकि 7 एक्सरसाइज की थी, हर एक एक्सरसाइज में अमेरिकन लॉस्ट। तो उन्होंने कहा, वो ये सोच के आए थे रेड ओवर रेड का मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री से करने जा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बट जब उन्होंने हमारी टैक्टिक्स देखी तब अमेरिकन के होश उड़े, वो दोबारा वापस आए। पर इस बार कहते हैं हम अब इंटर कंट्री नहीं करेंगे, मिक्स करके करेंगे, आप भी हमारे साथ ज्वाइन करिए, हम भी। फिर फ्रेंच आए, फिर ब्रिटिश आए, तब और सिंगापुर आए, तब उन्होंने डिसाइड किया इंडियन एयरफोर्स के पायलट की ट्रेनिंग जो है वेरी रियलिस्टिक। और जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चाइनीज के पास में कॉम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता, वो सिर्फ जनरल हैंडलिंग करके आ जाते हैं। और उनकी जो आर्टी जो है, वो जो जहां भी वेस्टर्न कंट्रीज में भी गए हैं, वो कहते हैं इनको ये कॉम्बैट अपना सिखाना बड़ा मुश्किल है। ये प्रॉब्लम है चाइनीज के साथ में, तो उनकी जो अपनी टैक्टिक्स है वो बिल्कुल काम नहीं आती, तो ये प्रॉब्लम है उनको। मतलब अब तो राफेल की हैप्पी लैंडिंग होने जा रही है और हैप्पी एंडिंग अब दुश्मनों की हो, वैसे ही हम इच्छा जाया करेंगे। आज इस मौके पे जैसे विजय सागर जी ने भी बताया, प्रफुल्ल बख्शी जी ने भी बताया, દર્શકો જે રીતે આ પેનલ ઉપર ચર્ચા થઈ છે અને આ પેનલ ઉપર ચર્ચા આપણે આગળ વધારીએ તે પહેલા વિજય સાગરજી आप फिर से कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज सर। 20 सेकंड नताशा, यू मे हैव एनी बेस्ट, दुनिया में आप बढ़िया बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट ले आइए, बट अल्टीमेटली इट इज अ मैन बिहाइंड द मशीन। और जो मैन हिंदुस्तान में प्रोड्यूस होता है ना, वो बड़े ही उम्दा क्वालिटी के सोल्जर्स हैं, चाहे वो एयर वॉरियर्स हो, नेवल हो, आर्मी हो। लेट मी टेल यू द सेकंड टू नन, उनका कोई मुकाबला नहीं है लड़ने में। वो बातें पुरानी गई जब मुगलों ने या किन्होंने आउटसाइडर्स हम पे करके आगे कब्जा कर लिया करते थे। अब जो प्रेजेंट इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड द पूरा कंट्री का जो एफर्ट है उसमें कोई कमी नहीं है, जहां तक हमारे दम का सवाल है। तो ये सब देशवासियों को मैंने बताना चाहता हूं कि आप हमारे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलिए, हम किसी को भी मारेंगे और अगली सेंचुरी हमारी है, बल्कि इसी सेंचुरी में ही हमारा काम शुरू हो रहा है। इट इज आवर सेंचुरी एंड वी विल बी द सुपर पावर, डेफिनेटली। बिल्कुल सर, और हमें गर्व है, हमें गर्व है। गुजरात रेजिमेंट बन रही है और ब्रिगेडियर साहब उसको संचालन करेंगे। या डेफिनेटली खूब कही जा रही है और हमें गर्व है हमारी सैन्य शक्ति पे। आफ्टर ऑल देयर इज अ मैन बिहाइंड द मशीन्स, जैसे कि वेरी राइटली सेड विजय सागर जी ने भी अभी कोट किया है। दर्शक મિત્રો, જ્યારે પણ આપણે ચર્ચા કરતા હોઈએ છે, સ્ટ્રેટેજિક પ્લાનિંગ હોય, તેના એક્સપ્લિકેશન્સ હોય, અથવા તો પછી તેના ઇન્ટર મિસાઇલ્સની અત્યારે જેટલી પણ ખૂબીઓ છે તે તમામ બાબતોની ચર્ચા અમે આપની સમક્ષ મૂકી। પેનલ ઉપર જ્યારે ચર્ચા કરી ત્યારે હવે રફેલનું આપણે જોરશોરથી વેલકમ જોઈશું, પણ તેને પબ્લિશિંગ રાઇટ્સ અત્યારે કોઈ પણ મીડિયા હાઉસ પબ્લિકેશન્સને નથી આપવામાં આવ્યા અને તેની પાછળનું એક વિશેષ કારણ છે। એક તરફ કોરોનાની મહામારી પણ છે, મોટી સંખ્યામાં લોકો ભેગા ન થાય તેનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને અત્યારે તમામ દેશવાસીઓમાં, તમામ દેશદાજ ધરાવતા વ્યક્તિમાં અત્યારે એક વિશેષ દેશદાજ છે અને તે નામ છે રફેલ।
विंग कमांडर सर और ब्रिगेडियर सर, आप हमारे साथ इस पैनल पे उपस्थित हुए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। દર્શક મિત્રો, રફેલની પરમાણુ શક્તિથી તો આપણે સૌ વાકેફ છે જ, પણ રફેલની જે ખૂબીઓ છે, જે વિશેષતાઓ છે, તેનાથી પણ ફરી એકવાર આપને વાકેફ કરાવતો આ એક વધુ એપિસોડ આપની સમક્ષ રજૂ કર્યો। આવા ઘણા બધા મુદ્દાઓ હજી પણ બાકી છે ચર્ચા કરવાના, ચર્ચા કરતા રહીશું। આજે બસ આટલું જ, મને આપશો રજા। નમસ્કાર।